آج ہم پرہیزگاری پر بات کریں گے۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، کرسی کے دے دو، جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی میں شوگر ہو جائے، تو شوگر جب ہوتی ہے، یہ ایسی بیماری ہے، ڈاکٹر خاص کہتے ہیں جی پرہیز کرنا ہے چینی تو، مٹھی شاہ تو پرہیز کرنا ہے، لڈو شڈو بولو جی، مٹھی چاہ نہیں پینی۔ تو اگر تو بندہ پرہیز کرے گا تو وہ فٹ فاٹ رہے گا، شوگر تیز نہیں ہوئے گی۔ تو جو شوگر تیز ہوئے گی تو پھر خطرہ ہے، کوئی زخم ہو گیا تو جی کہتے لت ماں کٹانی پہ جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ مثال کے طور پر اگر کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی ہے، اس کا بی پی تیز ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کی بی پی کی گولی لگاتا ہے اور کہتا ہے تسی گرم شیواں کھان تو کی کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے۔ شاباش، ذرا زور سے بولو، کیا کرنا ہے؟ گرم شیواں کھان تو، مجھ دا گوشت کٹے دا گوشت کھان تو کی کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے۔ نمک تیز کھان تو کی کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو جے کدی غلطی نہ نمک زیادہ کھا لیا تو پھر تمہیں گولیاں کھانیاں پہن گی، ڈاکٹر نے فیساں دینیاں پہن گی۔ پرہیزگاری علاج سے بہتر ہے۔ اگر تسی اپنا علاج خود کرنا چاہتے ہو تو پرہیزگاری کرو، پرہیز کرو۔ کیا کرو؟ پرہیز کرو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں پرہیزگاری لازمی ہے۔ آپ کسی باڈی بلڈر کو دیکھ لیں، اس نے باڈی بنائی ہے، اس نے محنت کی ہے، وہ کولڈ ڈرنک پینے سے پرہیز کرے گا، وہ چائے میٹھی چائے پینے سے پرہیز کرے گا، بریانی چاول کھانے سے پرہیز کرے گا، فاسٹ فوڈ کھانے سے پرہیز کرے گا، کہتا نہیں میں نے بڑی محنت کی ہے، میں اپنی محنت خراب نہیں کر سکتا، باڈی شیپ خراب نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ آپ کسی بھی کام کو دیکھ لیجئے، آپ ہر چیز میں پرہیز کریں، اور جس چیز میں پرہیز نہیں ہے وہ کام کی ہوئے گا؟ خراب ہوئے گا۔ آپ رشتہ داری میں دیکھ لیجئے، گھروں میں دیکھ لیجئے، خاندانوں میں دیکھ لیجئے، گھر میں جڑا مرضی منہ چوک کے آجے کی ہم دے آنگے پرہیز کہتے لے جی نہیں، ابھی تھوڑی منہ چوک کے کوئی آجے گا۔ ہر چیز کا ایک طور طریقہ ہے۔ تو سب سے جو اہم چیز ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ کیا ہے؟ اور روح اس کا جو 9واں پھل ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ کلام میں لکھا ہے گلتیوں 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری اور حلم اور پرہیزگاری، لکھا ہے ایسے کاموں کی شریعت کوئی مخالف نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ یاد رکھیے، اگر ہم پرہیزگاری کی بات کریں تو پرہیزگاری وہ دروازہ ہے جو خدا کے جلال تک ہمیں لے جاتا ہے۔ اگر آپ خدا کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا جلال ہم پر ہو، خدا کی حضوری ہم پر ہو، تو اس کے لیے پرہیزگاری اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خدا کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ خدا کا جلال میرے وسیلہ سے ظاہر ہو، تو پرہیزگاری جو ہے یہ خدا کا جلال ظاہر کرنے کا دروازہ ہے۔ اگر آپ کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے تو آپ کی زندگی سے خدا کا جلال کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ اور عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی آیت نمبر 14 کے اندر لکھا ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ سب کے ساتھ کیا رکھو؟ میل ملاپ۔ سب کے ساتھ کیا رکھو؟ آج جڑی گل ہے نا، ساڈا تے تہاڈا جینا مرنا ختم، اینو اپنی زندگی چوں کڈو۔ کلام میں لکھا ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھو، اور لکھا ہے اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ کوئی بندہ کہے جی میں پاکیزگی کے بغیر خدا کو دیکھ سکتا ہوں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ بغیر پاکیزگی کے خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور اگر ہم متی کی انجیل 5ویں باب کے اندر پہاڑی واضح پڑھے تو لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ کس کو دیکھیں گے؟ خداوند کو دیکھیں گے۔ ہاللیلویا۔
آج کلیسیا میں لوگ برکت پانا چاہتے ہیں، کہتے جی خداوند سانو برکت دے، اسی برکت لی آئے۔ آج کلیسیا میں لوگ معجزات پانا چاہتے ہیں، آج کلیسیا میں لوگ شفا پانا چاہتے ہیں، آج کلیسیا میں لوگ ترقی پانا چاہتے ہیں، لیکن خدا کا ایک سوال ہے، خدا پوچھتا ہے کیا تم پرہیزگار بھی بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ کیا تم پرہیزگار بھی ہو؟ تمہاری زندگی میں پرہیزگاری ہے؟ تمہاری آنکھوں میں پرہیزگاری ہے؟ تمہارے ہاتھوں میں پرہیزگاری ہے؟ تمہارے دل کے اندر پرہیزگاری ہے؟ خدا کبھی بھی اپنے قدرت کو ناپاک زندگی کے ساتھ نہیں ملاتا۔ یہ سن لیجئے، غور کیجئے اس بات کو۔ خداوند کبھی بھی اپنی قدرت کو ناپاک زندگی کے ساتھ نہیں ملاتا۔ خدا کا جلال ہمیشہ پاکیزگی پر آ کر ٹھہرتا ہے۔ کہاں پر آ کر ٹھہرتا ہے؟ آپ کو پتا موسیٰ جب 40 دن کے دعا روزے میں کلزم پر تھا، پہاڑ پر تھا، تو لکھا ہے خدا کا جلال اس کے اوپر آ کر ٹھہر گیا۔ لکھا ہے خدا کا نور جب وہ پہاڑ سے اترا تو اس کا چہرہ نور کی مانند چمک رہا تھا۔ خدا کا جلال اس پر آ کر ٹھہر چکا تھا، اور لکھا ہے لوگ موسیٰ کے چہرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، اتنا خدا کا جلال۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ جو ہے اس نے اپنا دل، اپنی زندگی جو ہے وہ پرہیزگاری کے ساتھ پاک ترین زندگی بنا لی۔ اگر ہم پطرس کا پہلا خط اور اس کے پہلے باب کی 15ویں اور 16ویں آیت پڑھیں، بیٹا ذرا نکالو جلدی سے، شاباش۔ کلام خدا میں لکھا ہے کیونکہ جس طرح تمہارے بلانے والا پاک ہے، تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ پاک کون ہے؟ زندہ خدا۔ لکھا ہے جس طرح تمہارے بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں کیا بنو؟ کیا بنو؟ تو خدا مجھ سے اور آپ سے پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے۔ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ پاکیزگی۔ خدا پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور پاکیزگی بغیر پرہیزگاری کے نہیں آ سکتی۔ پہلی بات غور سے سنیے، پرہیزگاری خدا کی حضوری کی قیمت ہے۔ پرہیزگاری خدا کی حضوری کی کیا ہے؟ قیمت ہے۔ کتنے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں خدا کی حضوری چاہیے، خدا کی حضوری چاہیے؟ گیت بھی ہم گاتے ہیں، تیری حضور زور سے برسے، ایسے ہی نا؟ تو پرہیزگاری جو ہے یہ خدا کی حضوری کی قیمت ہے۔ اگر آپ خدا کی حضوری کو لینا چاہتے ہیں، خدا کی حضوری آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی حضوری مجھ پر رہے، اس کے لیے پرہیزگاری کی قیمت ہے۔ اور قیمت کیا ہے؟ سی گانے بڑا زور سی گانے، رب خداوند بادشاہ و جلال دا۔ زبور 24 کی 3-4 آیت کے اندر لکھا ہے خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں۔ پرہیزگاری کی پہلی قیمت سن لو، وہی جس کے ہاتھ کیا ہے؟ صاف ہے۔ دوسری قیمت لکھا ہے جس کا دل پاک ہے۔ تیسری قیمت لکھا ہے جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ صاف ہیں، جن کے ہاتھ گناہ سے صاف ہیں، جن کے ہاتھ رشوت سے صاف ہے، برے کاموں سے صاف ہے۔ ان انگلیوں سے، ان ہاتھوں سے نہ جانے روز کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ اور خدا کی حضوری کی جو قیمت ہے، پہلی بات آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے۔ آپ کو پتا ہے شمشون کتنا طاقتور تھا، خدا کا پاکرو جب اس پر آتا تھا تو لکھا ہے وہ ہزاروں لاشیں گرا دیتا تھا۔ جبڑے کی ایک ہڈی سے اس نے فلسطینیوں کی 1000 پلوان مار دیتے۔ جب خدا کا روح اس پر آتا تھا بڑا کام ہوتا تھا، اور جب بھی دشمن اس کے آ کر ہاتھوں کو باندھتے رسیوں کے ساتھ، وہ ایک ہی جھٹکا مارتا، رسیاں اور ٹوٹ گئی۔ لیکن
जब उसके हाथों में पाकीज़गी नहीं रही, जब उसकी जिंदगी में उसके दिल में पाकीज़गी नहीं रही, उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा। वही जो अपने हाथों से जंजीरें तोड़ देता था, रस्सियां तोड़ देता था, दुश्मन की लाशें बिछा देता था, वही एक वक्त आया उसकी आंखें निकालकर उसे चक्की पीसने के लिए जेल में डाल दिया गया। अब वो ग्रेस नहीं है, अब वो मसा नहीं है, अब वो बरकत नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथ साफ नहीं है, क्योंकि दिल साफ नहीं है। परहेजगारी की कीमत आपके हाथ साफ होने चाहिए, आपके हाथ गुनाह आलूदा नहीं होने चाहिए, आपका दिल पाक होना चाहिए, आपने गुनाह के साथ दिल नहीं लगाना। कलाम में लिखा जिसने मुझसे दिल लगाया मैं उसे क्या करूंगा? हाँ, छुड़ाऊंगा। तो एदा उल्ट लो, जिन्ना मेरे नाल दिल नहीं लाया हो उन्होंने पसावांगा, छुड़ावांगा ते पसावांगा। कई दफा असी शैतान दे मगर चढ़े होने, खुदा खुद हमें मुसीबतों में जाने देता है। क्यों? क्योंकि हम खुद नालायक हरकतें कर रहे हैं, हमारी जिंदगी खुदा से ठीक नहीं है। कौम बनी इस्राएल को जो खुदा की दुल्हन थी, खुदा की आंख की पुतली थी, जब कोई दुश्मन उसकी तरफ आता खुदा लड़ता, खुदा दुश्मनों से लड़ता। लेकिन जब जब उन्होंने खुदा को रद्द किया, कलाम लिखा खुदा ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। दुश्मनों को खुदा ने उन पर खुद चढ़ा दिया, दुश्मनों ने खुद आकर उनके लोगों को मारना शुरू कर दिया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, परहेजगारी खुदा की हजूरी की कीमत है। आप खुदा की हजूरी लेना चाहते हैं, उसके लिए आपके हाथ पाक होने चाहिए, उंगलियां पाक होनी चाहिए। हमने कभी अपने हाथों के लिए दुआ नहीं की, खुदा मेरे हथों में पाक कर। ये जरूर कहने खुदा तेरा हाथ मेरे ते होवे जे जो कुबड़ी औरत हो गया सी, है नी, ये जरूर कहने, लेकिन हमने कभी इस बात के लिए दुआ नहीं की कि खुदावंद मेरे हाथों को पाक कर, खुदावंद मेरे दिल को पाक कर, खुदावंद मेरा दिल बतालत के साथ। किन्ने लोगों का दिल ही अज मोबाइल दे नाल लगा है, सोशल मीडिया दे नाल लगा है, टिकटॉक दे नाल लग गया है। यकीन मनो ऐसा लग गया कि होर कोई उन्होंने नजर ही नहीं आता। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये गौर से बात सुनिए, खुदा की हजूरी सिर्फ इबादत से नहीं बल्कि पाक जिंदगी से हासिल होती है। तुसी कहो जी मैं इबादत से आया, मैं खुदा दी बड़ी हजूरी सी, लेकिन गुनाह एडा एडा वड्डा, गंद एडा वड्डा वड्डा बोल, गिरजे च आके गैर जुबाना है जी। कलाम से लिखा खुदावन ने कहा तुम जमीन के नमक ते घर जाके मिर्च मसाला एडी एडी गाल बंदे ने खून नहीं देंदी बीबी। बल्ले नहीं सदके तेनू केड़ी हजूरी मिल गई है खुदा दी? तेनू खुदा वाली हजूरी, तेनू शैतान वाली हजूरी मिली होगी। खुदा की हजूरी के लिए हमें पाक तरीन जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, फिर खुदा की हजूरी है। दूसरी बात, शैतान को इबादत से ज्यादा परहेजगारी से डर लगता है। तुहानू को 70 गीत आउंदे ने, शैतान को कोई फर्क नहीं पैना। तुसी घंटा दुआ कर लेते हो, शैतान को फिर भी कोई फर्क नहीं पैना। तो महीना होंदा, सब तो पहले खुदा दे अगे अपनी कुर्बानी लैके आंदे हो, अपनी दायकी लैके आंदे हो, शैतान को यह भी फर्क नहीं पैना। तुसी गरीबां नूं खाना खवांदे हो, शैतान को यह भी फर्क नहीं पैना। तुसी गिरजे च काम करा रहे हो, शैतान को यह भी नहीं फर्क पैना। शैतान को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, शैतान को इस बात से फर्क जरूर पड़ेगा कि आप गुनाह से नफरत करते हैं, आपने गुनाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दिया। गुनाह आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। शैतान आपसे खौफ कब खाएगा? जब आप खुदा से खौफ खाएंगे, जब आप खुद खुदा से डरेंगे, कुछ करने से पहले खुदा से डरेंगे, कुछ बोलने से पहले खुदा से डरेंगे। हालेलुया। आप यूसुफ को देखें, जब यूसुफ को गुनाह के लिए उभारा गया, जब यूसुफ ने गुनाह से भागने का फैसला किया, तो उसने सिर्फ एक औरत से नहीं बल्कि शैतान की साजिश से भागने की कोशिश की। उसने शैतान की साजिश को नाकाम बनाया।
औरत नूं थोड़ी उन्होंने शिकस्त दी है, उन्हें तो शैतान सी बीबी च वड़िया। कौन वड़िया सी? कौन सी? शैतान दा नाम लैन तो कई डरन डे ने बेचारे। नाम लो की हो गया जी? की नाम सी ओहदा? हाँ मेरा जीसो, यूसुफ ने गुनाह से भागने का फैसला किया तो उसने सिर्फ एक औरत से नहीं बल्कि शैतान की साजिश से भी इनकार किया और कहा मैं खुदा के खिलाफ क्यों गुनाह करूं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। बेशक उसे जेल में जाना पड़ा, ओनू चक्की पीसनी पड़ी, ओनू नेरे च रहना पिया, ओनू मच्छरा च रहना पिया, लेकिन जिंदा खुदा उस अंधेरी कोठरी में भी उसके साथ था। हालेलुया। पाकीज़गी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। मिस्र का बादशाह एवं नहीं बन गया, एवं नहीं उन्हें रूह बचाइया। पाकीज़गी खराब नहीं होने दी। परहेजगारी की खुशबू जो है वो आसमान तक पहुंचती है। परहेजगारी की खुशबू कित्थे तक जाती है? कित्थे जाती है? ते गुनाह दी बदबू वो कित्थे जाती है? पता किसे नु कित्थे जाती है? वो भी जाती है, किसी ने निकाले नहीं। हाँ जी, ताकि दो में जा सके। नहीं नहीं, अच्छा, परहेजगारी की खुशबू अगर आसमान पर जाती है, अलार्म बज गया, तो गुनाह की बदबू भी आसमान पर जाती है। कई दफा सानू बदबू, किन्ने लोगों ने जिन्होंने बदबू पसंद ही नहीं, कहती अम्मा कहती नहीं कुड़िया गो नहीं घर च की आउण डई है, बो आंदी वेखो कित्थे चूहा मर गया, हां जी कोई चूहा मर गया है। कदी पेटी फोल, कदी कोई शय, कदी कोई शय, कदी कोई शय, कित्थों बो कित्थों आ रही है, स्मेल नहीं जा रही घर से। तो जिस तरह ये गंदगी की स्मेल होती है ना, इसी तरह गुनाह की भी स्मेल होती है। गुनाह की अगर स्मेल है तो पाकीज़गी की भी स्मेल है। अगर नूह के जमाने में खुदा उस वक्त के लोगों की बदी का शोर, गुनाह की बदबू का शोर सुनकर जमीन पर नजर कर सकता है, देख सकता है और कहता है कि ये दुनिया गुनाह में पड़ गई है, गुनाह में पड़ गई है, बदी में पड़ गई है, बदकारी में पड़ गई है, हरामकारी में पड़ गई है। खुदा को सदोम और मोरा के लोगों के गुनाहों की बदबू आती है, खुदा को नूह के जमाने के लोगों के गुनाहों की बदबू आती है, तो फिर खुदा को मुकद्दस नूह की रास्तबाजी की, पाकीज़गी की खुशबू भी आती है। हालेलुया। लिखा उसने हमें नजर की, एक बंदा भी रास्तबाज नहीं है, एक बंदा भी ईमानदार नहीं है, एक बंदा भी परहेजगार नहीं है, और अगर मिलिया ही तो मिलिया है मुकद्दस नूह रास्ता। हालेलुया। थालियां बजाए। अच्छा, बाइबल मुकद्दस के अंदर 3 लोग हैं जिनकी खुदावंद खुद मिसाल देता है कि ये रास्तबाज है। नंबर 1 मुकद्दस नूह, लिखा है वो अपने नूह अपने जमाने के तमाम लोगों में क्या है? रास्ता। और दूसरा मुकद्दस अयूब, और तीसरा मुकद्दस यूसुफ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर हमारी जिंदगी के अंदर परहेजगारी नहीं है, फिर हमारे अंदर गुनाह की बदबू है, गुनाह की स्मेल है, और ये स्मेल खुदा तक जा रही है, लेकिन खुदा फिर भी हलाक नहीं कर रहा, खुदा फिर भी बर्बाद नहीं कर रहा, खुदा फिर भी सजा नहीं दे रहा। खुदा रहीम है, खुदा रहम करने वाला है, खुदा इसलिए बार बार मौके देता, लेकिन वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि सब जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदा अगर मौका दे रहा है तो पाकीज़गी इख्तियार कर ले। खुदा अगर मौका दे रहा है तो आपकी जिंदगी से परहेजगारी की खुशबू आनी चाहिए, गुनाह की बदबू नहीं आनी चाहिए, पाकीज़गी की खुशबू आपकी जिंदगी से आनी चाहिए। हालेलुया। और याद रखिए, जिसकी जिंदगी से पाकीज़गी की खुशबू है, खुदा उससे खुश है। खुदा ऐसे लोगों को तलाश करता है जिनकी जिंदगी खुशबूदार है। समझ आ रही है कितने लोग? बहन जी, कंधना नहीं लगना, नींद आ जाएगी, कंधना नहीं लगना है।
खुदा ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है, मैं बता रहा हूं। और खुदा ने मुकद्दस नूह को तलाश किया, देखा एक कोई बंदा लगा, खुदा ने उन्हें कहा तू ही बना कश्ती। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी से पाकीज़गी की खुशबू आ रही है, आप दूसरों को बचाएंगे और आप भी बचेंगे, आपका घराना भी बचेगा। जिस तरह नूह भी बच गया और उसकी घराना भी बच गया, उसकी बीवी, उसके बेटे और उनकी बीवियां भी बच गई, आप भी और आपका घराना भी बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आवाज बड़ी काट होनी चाहिए। हालेलुया। सुनो मेरी बात गौर से, हर छुपा हुआ गुनाह मुस्तकबिल की बरकत चोरी करता है। मैंने क्या कहा? हर छुपा हुआ गुनाह मुस्तकबिल की बरकत को चोरी करता है। अपने साथ वाले को बोलो, साथ वाले को उधर मुंह करना, मेरे मैनू नहीं कहना बार बार, जिन्हों कोई भी ना वेखण डे मैनू कहता जाए। कहें जी, हर छुपा हुआ गुनाह मुस्तकबिल की बरकत चोरी करता है। क्या आपकी जिंदगी में कोई छुपा हुआ गुनाह है? क्या आपकी जिंदगी में कोई छुपा हुआ गुनाह है? आपको बताऊं, बरकतें पता कैसे मिलती है? नंबर एक, बरकतें दुआ इबादत करने से आती हैं। लेकिन तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरे रोटी पानी पर और तेरे बीच में से और तेरे मुल्क में कोई बांच, तेरी उम्र को, तेरे रूबरू तेरे दुश्मनों को क्या दूंगा? ये बरकतें हैं। और ये किससे आती हैं? इबादत करने से। कुछ बरकतें माँ बाप की इज्जत करने से आती है। जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, सुनो मेरी बात गौर से, जो लोग अपने माँ बाप का हुक्म मानते हैं, जो अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करते हैं, खुदा आसमान से ऐसी औलाद को माँ बाप की फरमा बरदारी और ताबेदारी करने से बरकतें देता है। क्या देता है? ते जिन्ना मां प्यो दी खिदमत नहीं की, मां प्यो दी इज्जत नहीं की, वो वेखियो जे यकीन मनो रोंदे ही रहणगे और रोंदे ही तुहानू नजर आउणगे। ते जिन्ना कीती अज जाओ जाके वेख लो, उन्हां दी जिंदगी च खुदा दी बरकतां भी तुहानू नजर आउणगियां। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ बरकतें ऐसी होती है जब हम खुदा की खादमों की खिदमत करते हैं। आप बेवा औरत को देखें, उसने खादम को एक रोटी खिलाई, उसका हुक्म माना, उसने कहा जा जाकर पानी लेकर आ, फिर कहता जा ना रोटी भी लाया। तो कहती मर्दे खुदा, मैं और मेरा बेटा और काल है, एक रोटी हम खाएंगे, अद्धी मेरा पुत्र, अद्धी मैं, अद्धी तेरे लिए लियांदी है। उसने कहा जा, जैसा मैं कह रहा हूं कर तो सही। वैसा ही किया। और मुड़कर जब वो अपने घर में गई, कलाम में लिखा है ना खुदा ने उसके मटके को खाली होने दिया और ना ही उसकी तेल की कुप्पी को खाली होने दिया। बरकत ही खत्म नहीं हुई, तुझे आके खाने रे। खुदा का बंदा 3 साल बेवा औरत के घर से पराठे खाता रहा, तेल वाले प्यो प्यो के, लेकिन आटे चे मट्टी और कुप्पी में तेल खत्म नहीं हुआ, मट्टी में आटा खत्म नहीं हुआ। ये बरकत है। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, उस शनात ने अलीशा की खिदमत की, उसे घर बना के दिया, लेकिन उसे पलंग लगा कर दिया, उसे शमदान लगा कर दिया। ये बरकतें मैं बता रहा हूं। और कुछ बरकतें ऐसी हैं जो हम खुदा का कलाम सुनते हैं और उसको अमल में लाते हैं। जब अमल करते हैं फिर बरकतें आती हैं, जब अमल नहीं करते फिर बरकत कोनी दी होनी। मैं तुम सच्ची गल दसना, कोई फायदा नहीं जे कहो जी खुदा दी बड़ी जरूरी आई, ओ हालेलुया, कष्ट भी नहीं जे अमल। तो खड़े जो पिछले दिनों एल साहब मुझे बता रहे थे 60,000 मेरी सैलरी है और मैं आधी तनख्वाह लेना होना, मैं जानता ही नहीं सा। ये गवाही मैं बता रहा हूं। कलाम की एक आयत उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा कलाम में लिखा है थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को क्या बना देता है? खमीर। तुसी आटा खुनो, थोड़ा जा विच नमक पा दो, आटा सारा की हो जाएगा। उन्होंने कहा मैंने इस आयत को सुना, गौर किया, फिर इस पर अमल किया कि यार मैं घर बैठा तनख्वाह लैने और मैनू किन्नी आउंदी कट कटा के, यही मैं खुद जाके अगर मेहनत मजदूरी करांगा तो मैनू किन्नी मिलेगी, नाले मेरे घर दे विच हलाल आएगा। की आएगा? मेहनत की कमाई आएगी। और कहते हैं उसी दिन मैं गया
मैंने उनसे कहा कि जी मैं अपनी ड्यूटी पे आना चाहता हूँ, मुझे मेरा इलाका बता दें, जहाँ पर मुझे आप जिस पॉइंट पर मुझे आप हायर करेंगे मुझे बता दें, मैं ड्यूटी करूँगा। कहते हैं वो दिन है, आज का दिन है, खुदा का शुक्र है मेरे घर में रिज़्क़ ख़त्म नहीं होता। हालेलुया। साहब हाँ जी हम डबल हो गया काम। हालेलुया, जोर से ताली बजा दो। अमल तो जे अमल नहीं ना किया, पादरी बड़ा सोहना कलाम सुनाता, पादरी बड़ा अच्छा कलाम सुनाता, तो कख भी नहीं होना अमल तो बगैर। लिखा अमलों दे नाल है बई रब नूं ठगना तू दिल सुता ते जागदा मुंह। अमलों दे नाल की मिलती है? जिंदगी मिलती है। तो याद रखिए, हर छुपा हुआ गुनाह मुस्तकबिल की बरकत को चोरी करता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी गुनाह, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गुनाह है, आपकी अगली बरकतें खराब हो सकती हैं। खुदा इन्ना को तो देगा कि खान पीन का सिलसिला चल जाएगा, लेकिन जो खुदा के लोगों की जिंदगियों में बरकतें होनी चाहिए, फिर वो बरकतें नहीं होंगी। अगर यूसुफ समझौता कर लेता तो शायद वो मिस्र का बादशाह ना बनता या ना बनता। हालेलुया। शैतान, सुने बड़ी बात गौर से, आप बड़ी चाल, शैतान बड़ी चालां खेलता, यकीन मानो। और शैतान कभी भी फौरन इंसान को तबाह नहीं करता। शैतान यकीन मानो जो आंदे ना तेनों पानी पिया पिया के मारांगा, इंज करदा बंदे, कहदा तेनों चुक चुक के मारांगा, ये हाल कर देंदा बंदे दा। वो पहले दिल में छोटा समझौता पैदा करता है, थोड़ा झूठ पैदा करता है, थोड़ी बेईमानी पैदा करता है, थोड़ी नापाकी पैदा करता है, फिर आहिस्ता 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 बंदे नूं पूरा ही गुनाह दे विच लै जांदा। आ लै ऐ तेरा हाल, ऐ तेरी जगह। फिर यही चीज इंसान की खिदमत, खानदान और उसकी बरकत को खा जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा मेरी बात सुनिए गौर से, परहेजगारी कुर्बानी मांगती है। गल किहदी हो रही है? परहेजगारी दी। तो परहेजगारी की मानदी है? रुल कुछ दा आखिरी फल जे, ते मैं कहना बहुत वड्डा फल जे, जे ऐ काम बंदा कर जावे तो समझो बंदा अद्धा ते तारी जाएगा। तो 80-90% ते बंदा तर जाएगा। परहेजगारी क्या मांगती है? साथ वाले से कहे, परहेजगारी कुर्बानी मांगती है। जरा जोर से कहो, कान पे खोल करते, परहेजगारी कुर्बानी मांगती है। सुनिए मेरी बात गौर से, मूसा ने मिस्र की शानो शौकत को छोड़ा, उसने तख्त को छोड़ा और अपने लोगों में जाकर जो गुलामी में थे उनकी सारी गुलामी बर्दाश्त करना पसंद की। दानियल ने बादशाह की शाही खुराक को कबूल नहीं किया। उसने लिखा है अपने दिल में इरादा कर लिया, उसने कहा मैं इस नापाक और नजीस खुराक से अपने आप को नापाक नहीं करूंगा, मैं खुदा का गुनहगार नहीं बनूंगा। ला जाओ आज जेड़े तुम सप तल के ले आयो, डड्डू तल के ले आयो, पता नहीं केड़ियां केड़ियां मकरूह शैवां तल तुल के ले आयो, मैं नहीं खानियां, मैनू साग पात दे दो, मैनू पानी दे दो बस। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने गुनाह से इनकार किया, कोई समझौता नहीं। यीशु ने सलीब कबूल की, हालांकि कई लोगों ने ऐलान किया, पिलातुस ने भी ऐलान कर दिया, उसने कहा किलो बंदे ने फड़ जाए, यार तो कोई गुनाह ही नहीं चाहिए, इसने तो कोई गुनाह किया ही नहीं है, कोई साबित ही नहीं हुआ। यीशु खुद भी कहता है कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित कर सके। कुर्बानी दी, मूसा ने कुर्बानी दी, दानियल ने कुर्बानी दी, यूसुफ ने कुर्बानी दी, दुनिया के निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बानी दी। मैं कहता हूं अगर ये सब कुर्बानी दे सकते हैं तो सानू गच पै गया। असी कुर्बानी नहीं दे सकते। आप एलिया को देखे, एलिया के बारे में लिखा वो हमारा हम तबीयत इंसान है, उसने कहा आसमान बंद हो जाते, की हो गया? आसमान बंद हो गया। उसने कहा आसमान खुल गए, आसमान की हो गया? खुल गया। हालेलुया।
ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਚੁਗਲੀ ਉਧਰੋਂ ਚੁਗਲੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ही नहीं बंद ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। मैं कहता हूं अगर ये सब कुर्बानी दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं कुर्बानी दे सकते। परहेजगारी कुर्बानी मांगती है, अपने जज्बात की कुर्बानी, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी, अपनी औलाद की कुर्बानी, अपने वक्त की कुर्बानी। कुर्बानी खाई आंदे हो तल तल के खाई आंदे, आप ही कोई नहीं देनी कुर्बानी। अम्मा कहती कुछ नहीं होता पास्टर साहब, मैं कहती जो तेन हैंडल पे ना फरिश्तियों को तेन लग पता जाएगा। मैं अम्मा ने कि गुस्से में कह छड़िया, अम्मा कहती भाई साहब कुछ नहीं होता खान दो, कलाम दे सुना छड़िया मैं तेन हुण पुछ लेगा आपे। तुसी बैठे हो कुर्बानी दे हस रहे हैं पीछे। अम्मा ने 30 साल हो गए छड्या होया, दूजी मैं ना नहीं लेना। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, खुदा परहेजगार लोगों को अपने राज बताता है। किन्ने लोगों को? परहेजगार लोगों को की दसदा अपने राज। बादशाह ने खा देखी, उन्हें सारे जादूगर बुला ले, सारे मंत्री शंत्री गंजे जकूटे बुला ले, उन्हें कहा दसो मैं ख्वाब की वेखी है, एदा मतलब की? वो परेशान हो गए। बादशाह कहता जे अज तुसी ख्वाब ही ना दसी ते एदा मतलब ही ना दस्या ते सारे वड्डे टुके जाओगे, एक नहीं छड्डांगा। कोई बंदा नहीं दस सकिया। हालेलुया। और जब दानियल ने पता लगा, उन्होंने कहा खुदा मुझे मौका दिया जाए, बादशाह सलामत मुझे मौका दिया जाए। तो आपको बैठे दुआ में, हालेलुया, खुदा ने ख्वाब भी बता दी बादशाह की और उसकी तबीर भी बता दी। हालेलुया। छुपे हुए राज जो परहेजगारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, सादा जिंदगी गुजारते हैं। मैं कहता भाई साहब छत नहीं पैन रही, बंदा कहता मैं क्या भाई जी ये हक हलाल की कमाई ना चर्च बनन दिया है, ये लोगों के खून पसीने की कमाई ना चर्च बनन दिया। हालेलुया। जे गोरियां दे डॉलर ना बनना हुंदा ते उन्होंने टैलां लगियां होंदियां, हुण जी कहते पिछे LCD लगे होंदे। हालेलुया। छत जी जिहदे उत्ते एडी वड्डी छत पाई ना, कोई पिलर ने जे नजर आउंदे हो इहदी भी पा देगा जी, तो जो पैनी है तो पता भी नहीं लगना। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ। खुदा परहेजगार लोगों को अपने राज बताता है। ज़बूर 25 और 4वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। खुदावंद को राज वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। कितने लोग डरते हैं? हाँ जी। अच्छा जो ड्यूटी ते जाना ना, उदो डर है कि लेट ना हो जाइए, हैं? डर लेट ना हो जाइए, वरना उन्हें गेट बंद कर देना, निकलो। तो जो गिरजे वाला उदो किसी का डर को नहीं। डंडा लैके खलोता है, लेट आया मारिया सिर ते डंडा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उनको बताएगा। हमारी जिंदगी में छोटी छोटी बातों में खुदा का खौफ होना चाहिए, खुदा का डर होना चाहिए। असी दूजियां नूं डरांदे हुंदे आ, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, राशन महंगा हो गया, आप ही नहीं डरने। और पाए जितना मर्जी महंगा हो जाए, पाए जो कुछ मर्जी हो जाए, आप खुदा के लोग हैं। खुदा आपके हर एक जरूरत को पूरा करेगा। खुदा भूखा नहीं मरने देगा। खुदा ने काल के दौर में एलिया को नहीं मरने दिया, बेवा को नहीं मरने दिया, उसके बच्चे को नहीं मरने दिया, आपको कैसे मरने देगा? हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, खुदा इससे पहले कि ऐसी नौबत आ जाए, खुदावंद खुद बादलों पर आ जाएगा और जिंदा उठा कर ले जाएगा। हालेलुया। जोर से तालियां बजा दीजिए। आपको पता हर शख्स खुदा की आवाज नहीं सुनता,
हर शख्स को खुदा की आवाज नहीं आती। कितने लोग हैं जिनको खुदा की आवाज आती? अभी तो आ रही है खुदा की आवाज, आपको आ रही है। ये किसकी आवाज है? पर्सनल आवाज, जो खुदा डायरेक्ट, जैसे खुदा ने सैमुअल से कहा, खुदा ने उसे बुलाया। कलाम बेशक खुदा की आवाज है, हर शख्स से खुदा कलाम नहीं करता। अब मुझसे खुदा ने कलाम किया, जब हमने 9 फलों को सीख लिया, अब खुदा मुझे खुदा का आवाज दे रहा है कि अब कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों पर सिखाना है। किस पर सिखाना है? और एक एक शागिर्द पर हम सीखेंगे। और ये खुदा की आवाज मुझे आई है। किसकी आवाज आई है? हाँ, खादम ਨੂੰ खुदा ਦੀ आवाज ना आए, खादम चल नहीं सकता कलीसिया ਨੂੰ लेके। सुनो, खादम बोल नहीं सकता, खादम खड़ा नहीं हो सकता। और याद रखिए, आज इस तरह से जिस तरह खुदा कई अपने खादमों से या कई अपने लोगों से, चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं, खिदमत में है खिदमत में नहीं है, खुदा सिर्फ अपने खादमों से नहीं, खुदा आम लोगों से भी बात करता है। खुदा अपने लोगों से जो परहेजगारी में रहते हैं, खुदा उनसे कलाम करता है, खुदा उन्हें बुलाता है, खुदा अपने भेद उन पर जाहिर करता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। खुदा अपने राज उन लोगों पर जाहिर करता है जिनके दिल पाक होते हैं और जो खुदा के साथ मुखलस होते हैं। एक खास बात करने लगा, गौर से सुनना, मेरी तरफ तवज्जो करना। जितने बेटे बाहर खड़े हैं, जरा गौर से सुनना। आज अगर आज खुदा आपका मोबाइल, आपके ख्याल, आपकी तन्हाई, आपकी गुफ्तगू, आपके दिल को देखे, तो क्या वो खुश होगा? हाँ जी कलीसिया, अगर आज खुदा हमारे मोबाइल फोन चेक कर ले, असी दे मोबाइल यकीन पता नहीं कितने चंद्रे मारे हुए ने। पहला फोन फड़ो दे उत्थे चंद्रा, दूजा व्हाट्सएप फड़ो दे उत्थे चंद्रा, तीजा यूट्यूब फड़ो उत्थे चंद्रा, चौथा टिकटॉक फड़ो दे उत्थे चंद्रा। किन्ने को ताले लाए जे बंदा बीवी को फोन फड़ा तो डरन दिया, बीवी बंदे लो। बच्चे माँ बाप के सामने फोन नहीं लगे, फाड़ी ना लगे, कोई मेक ही ना लगे। खुदा अगर आज हमारे मोबाइल चेक कर ले, आज वो हमारे ख्याल चेक कर ले, तुहानू पता जेडे साडियां सोचां च हुंदा खुदा दे अगे फिल्म चलन दी, जो ही सोचने हैं वो हमारे ख्याल ही चेक कर ले। वो हमारी तन्हाई, तन्हाई में पता है, तन्हाई अच्छी भी है और तन्हाई खतरनाक भी है। दाऊद जब तन्हाई में था और महल की छत पर चढ़ा तो क्या हुआ? हाँ भाई प्रवेश कह रहे हैं, गुनाह हुआ। तो ज्यादातर तन्हाई में गुनाह होता है। खुदा जब लोगों को तन्हाई में देखता है तो लोग ज्यादा गुनाह में है। अगर वो हमारी तन्हाई को चेक कर ले आज, अगर वो हमारी गुफ्तगू इतने तो बढ़िया नरम नरम गल्ला, सोनिया सोनिया, मिठिया मिठिया, लुनिया लुनिया गल्ला, अगर वो बाद में हमारी गुफ्तगू चेक कर ले कि दूसरों के साथ हम कैसे हैं, खानदान के साथ कैसे हैं, बीवी शौहर के साथ कैसी है, शौहर बीवी के साथ कैसा है, सस नूह दे नाल कैंज दी जुबान इस्तेमाल कर दी और नूह सस नाल मेरी मामा मेरी मामा मेरी मामा, है किदी है, एडा पाल के तेनू दे छड़े किदा। अगर खुदा आपका मोबाइल, आपके ख्यालात, आपकी तन्हाई, आपकी गुफ्तगू और आपके दिल को देख ले तो क्या वो खुश होगा? नहीं। कौना लखारा मेरे को, कौना बेईमानी, छोटी छोटी बातों में हम बेईमानी कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में निके निके गुनाह, निके निके अबलीश यकीन मनो टोटे करन दे साडे। फिर असी गीत गा छड़े, जाती जूलियत तूने जिंदा खुदा को ललकारा है, तूने मौत की मौत होनी है। ओ हमारे पता नहीं कितने टोटे कर रहा है, कभी मोबाइल फोन के जरिए से, कभी ख्यालात के जरिए से, कभी हमारी तन्हाई के जरिए से, कभी हमारी गुफ्तगू के जरिए से, कभी हमारा दिल ठीक नहीं हो रहा अभी तक। मेरे अजीज बहनों भाइयों, याद रखिए, अगर यीशु आज रात वापस आ जाए,
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਯਿਸੂ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ कलीसिया चुप, क्या हम तैयार हैं? कोई तैयारी नहीं। क्या खिदमत गुजार खादम डॉलर वाले खादम तैयार है? कलाम में लिखा है इन्हें ज्यादा सजा होगी। क्या होगी? ज्यादा सजा होगी। और जो लोग खिदमत को पहचानते नहीं है फिर उनको भी सजा होगी। हमारी सेमिनरी में जो मेरे उस्ताद थे वो पानी के बपतिस्मे पर बात हो रही थी, कह रहे थे बच्चों को जो बपतिस्मा होता है वो बच्चों की बरकत होती है, मखसूसियत पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा। जो बच्चों को गलत तरीके से बपतिस्मे दिलवाते हैं, माँ बाप की बात हो रही है, और जो बच्चों को गलत तरीके से पानी के बपतिस्मे देते हैं, दोनों सजा पाएंगे। लिखा है अगर आसमान से फरिश्ता भी आकर इस खुशखबरी के अलावा तुम्हें कोई दूसरी तालीम दे, वो क्या है? मलाउन है खुदा फरिश्ते नु नहीं छड़ेगा ते तुझिया नु कितो छड़ेगा जी। सवाल कर रहा हूं, अगर आज रात यीशु वापस आ जाए क्या हम तैयार हैं? नहीं। क्या हम तैयार हैं? परहेजगारी कल से नहीं। मैं भैन नु कहा भैन जी गिरजे होने, कहनी पास्टर जी आज नहीं कल आवांगी। मैं कहा तू कल भी नहीं आना। मैं कह लो मैं तुहानू लिख के देना, तुसा कल भी नहीं होना। और वाकई कल नहीं है। जिन्हें आखिया ना कल करांगे फिर करांगे, खुदा देगा तो करांगे, नहीं होगा। जो थोड़े में दयानतदार नहीं है वो बहुत में भी दयानतदार नहीं है। परहेजगारी कल से नहीं आज से, और बल्कि आज से नहीं बल्कि अभी से। ज़बूर 51 उसकी 9वीं आयत को मेरे पीछे पढ़ना जरा जोर से। लिखा है ऐ खुदा, जोर से बोलो ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, और उनमें आसरेनो मुस्तकीम रूह डाल। आमीन आमीन। कलीसिया आयत जुबानी याद करेगी? ऐ वाली याद करेगी? बाजी नसरीन ऐ वाली आयत जुबानी याद कर रही है। अमा मारता तुहानू मैं करावांगा, बाकी एक दूसरे ने याद करा। अगले संडे ये आयत जुबानी याद होनी चाहिए, आपने दूसरों को सुनानी है। मेरे पीछे बोलो ऐ खुदा, जोर से बोलो ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, और मेरे बातन में आसरेनो मुस्तकीम रूह डाल। एक याद तुसी ज़ुबानी याद करनी, एक आयत ज़ुबानी याद करनी। बड़ा औखा काम नहीं, बड़ा सौखा जिहा हो जाएगा। यकीन मनो मैं 10-15 मिनटों के विच इत्थों तिन्नां चों बच्चों नूं लैके मैं खड़ा हो जावां ते तुहाडे सामने इन्हां नूं याद करा दा। बच्चों घर में आपस में इस आयत को लिखो, कॉपी पे लिखो। जो खादम कहता उन्होंने मान लो, खुदा दा नाजन मान लो, तानू बरकत मिलेगी, तानू बरकत मिलेगी। नुमान कोड़ी ने गल मन्नी ते उन्होंने शिफा मिली। कोड़ गया अज ना मनदा ते उंज ही जाना सी तोहफियां दे नाल, जिथों आया सी उत्थे ही। हालेलुया। बेवा औरत ने खादम की बात मानी तो काल के थार में मटका खाली नहीं हुआ। उस बेवा औरत ने जिसका शौहर मर गया और कर्जदार उसके घर में उसके बच्चों को उठाने आ गए, उसने भी खादम की बात मानी थी। उसने कहा कर्जदार मेरे बच्चों को उठाने के लिए आ गया, सूद करके कहते अल्लाह तेरा बंदे ने कर्ज ले आई और चुक के ला जाएंगे तेरे बच्चों को। उन्होंने कहा ना मेरे बच्चों को हाथ ना लाओ, मैं आनी है हुणे ही आनी है। खादम को दुआ करा के तो अलीशा ने कहा जा तेरे घर में क्या है? उन्होंने कहा सिर्फ एडी को कुप्पी है और तेल है। उन्होंने कहा जाके गवानिया को, सज्जिया को, खब्बिया को, घर दे सारे भांडे लैके रख लै ते ओ जिहड़ी तेल दी कुप्पी है उन्हां च उंडेल दी जा। ते फिर की होएगा? तो जो भरते जाएंगे जो सारे बर्तन फुल हो जाएंगे खत्म हो जाएगा। वो तेल लई वेची ते अपना कर्ज उतारी, बाकी अपने बच्चों का ते अपना खर्चा चलाई। हालेलुया।
اور ایسا ہی ہوا, ایسا ہی ہوا جیسا خدا کے خادم نے کہا ویسا ہی ہوا. خادم جو پرپٹ سے بات کر رہا ہے اس کو مان لیں گے, آپ کو برکت ملے گی. اہلی آیت زبور 51, زبور 51 اور اس کی آیت نمبر 9 لکھو بیٹا, اینو لکھ لو, یاد کر لو. اے تسی یاد کرنی ہے, تو زبانی یاد ہونی چاہیے اور آپ کو بڑی برکت ملے گی. میں کہہ رہا ہوں خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں بڑا کام کرے گا. ہاللیلویا. हालेलुया. سب زور سے کہے پکیزگی, पकीजगी, پرہیزگاری परहेजगारी قربانی مانگتی ہے. कुर्बानी मांगती है. آمین. आमीन. ہاللیلویا. हालेलुया. سو میرے عزیز بہنوں بھائیوں, آئیے اپنی زندگی چیک کریں کیا ہماری زندگی میں پرہیزگاری ہے کہ نہیں. اگر پرہیزگاری نہیں ہے تو آج سے پرہیزگاری ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. ہاللیلویا. خدا کا روح آپ کے وسیلہ سے دوسروں کو بچائے گا. خدا کا پاک روح آپ کے وسیلہ سے دوسروں کی زندگیوں میں کام کرے گا. آپ دیکھیں جن جن لوگوں کی زندگی میں پرہیزگاری تھی انہوں نے دوسروں کو بچایا. نوح کے اندر پرہیزگاری تھی, اس نے اپنے آپ کو بھی, اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو, اپنے پورے گھرانے کو کیا کر لیا, بچا لیا. دانیل نے ناصر اور جادوگروں کو, بادشاہ کو بھی اور پوری رعایا کو بھی بچا لیا. اور مصر میں مرنے والے جو لوگ تھے یوسف کی پرہیزگاری کی وجہ سے, جو 7 سال قید کا دور تھا, وہ لاکھوں لوگ اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے بچے. آپ پرہیزگاری کریں گے, آپ کا شوہر بچ جائے گا, آپ کی بیوی بچ جائے گی, آپ کا مال, آپ کا بچے, آپ کا روزگار, آپ کا علاقہ, آپ کی کلیسیا, آپ کے لوگ بچ جائیں گے. پرہیزگاری. آمین.